Greetings to all the students. Welcome to today's maths class. Today we are going to get the solution of the assignment in front of you. This has been sent to you already. I hope many of you have completed this assignment. Those who have not got the assignment, they can do it now. They can read the questions from the video and do their solutions by pausing the video. Later on, you will check your solutions. And those who have done whatsoever the problems you have faced, you are going to get the solution. Also, you will check whether the solutions you have done are correct or not. So let me start our class with the first question. Your first question is the pair of linear equations y is equal to 0 and y is equal to -7 has. This pair has how many solutions? One, many, or no solution? Let me start the question. Your equations are y is equal to 0 and y is equal to -7, right? Y is equal to 0. If we do this question graphically, अगर आप ग्राफ बनाते हैं, I am taking this x-axis, this one as y-axis. Y is equal to 0. Y is equal to 0 when you are given the equations like this. If you are given some value of y, that means the equation, the line of this equation will be the line parallel to x-axis. Y is equal to 0 means you have the value of y and this value of y is for all the values of x. Y 0 है, चाहे आप x की कोई भी value ले लें. That means if I take here 1, 2, 3 and this is 4 and suppose -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7. Let this point is -8. Right. Now y is equal to 0 means चाहे आप x को 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, y क्या रहेगा? 0 रहेगा. अगर मैं x को 1 लेती हूं तो y 0 रहेगा, मीन्स ये पॉइंट. x को 2 लेती हूं तो भी y 0 है, मीन्स दिस पॉइंट. 3 लेती हूं तो पॉइंट y 0 है, दैट मीन्स 3 0. तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? आपकी लाइन क्या आ गई? सोल्यूशन आया आपकी ये लाइन, राइट? सो इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये लाइन है हमारी y is equal to 0, राइट? सिमिलरली y is equal to -7 मतलब y की वैल्यू -7 होनी चाहिए, x की वैल्यू कुछ भी हो, राइट? तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको y की वैल्यू गिवन है तो दैट इक्वेशन विल बी, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. अगर y की वैल्यू है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी. अगर x की वैल्यू गिवन होती तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती. नाउ y -7, ये रहा y -7 पैरेलल टू x एक्सिस मींस दिस लाइन. दिस इज y इज इक्वल टू -7, राइट? अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए y -7 है, चाहे आप x को 1 ले तो भी y -7 है, चाहे आप x को 4 ले तो भी y -7 है, राइट? अब ये 2 पॉइंट्स हम इस पे देख लेते हैं कहाँ है. x1 y -7, x1 y -7, तो आपका पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा. x4 y -7, x4 y -7, ये पॉइंट आ गया और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास ये लाइन आई, राइट? नाउ विच टाइप ऑफ लाइंस आर दीज? कैसी लाइंस है? ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल. पैरेलल है मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट? और जब भी आपके पास 2 लाइंस होती हैं, वो जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आपका सोल्यूशन होता है, राइट? अब ये पॉइंट लाइंस कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन कहां से आएगा? We will not get any solution. So in this case, your answer will be no solutions. Right? You do not have the solution of this pair of linear equation. Clear? Second question. Your second question is the value of k for which the pair of linear equations 2x plus 2ky is equal to 2. And second equation is 2x plus 5y plus 1 is equal to 0. Right?
they are saying these lines are parallel. Parallel lines, देखिए, parallel lines means they will not intersect. पैरेलल लाइंस का मतलब है कि वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं मीन्स दे डू नॉट हैव द सोल्यूशन, राइट? दे विल नॉट हैव द सोल्यूशन. और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? आपकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. नॉन इंटरसेक्टिंग वी आर सेइंग दैट मीन्स दे हैव नो सोल्यूशन, राइट? नो सोल्यूशन कब आता है? जब आपके पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. नाउ लेट वी अप्लाई द सेम हेयर. पहले लिख लेते हैं व्हाट इज A1. A1, A2, A3 हमें मिलते हैं, सॉरी A1, B1, C1 मिलते हैं हमें फर्स्ट इक्वेशन से. A2, B2, C2 मिलते हैं हमें सेकेंड इक्वेशन से. सो A1 है x के साथ वाला 2, B1 है y के साथ वाला 2k और C1 देखिए हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. अभी हमारा ये इक्वल के इस साइड है, तो अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी -2 और आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2ky -2 इज इक्वल टू 0. अब यहां से आप चेक करेंगे व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ C1. C1 इज -2. A2 इज, सेकेंड इक्वेशन पे आइए, x का कोफिशिएंट 2, B2 इज y का कोफिशिएंट 5 and C2 is the constant term 1. So as the lines are parallel, so क्या होना चाहिए? A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2, right? Now put the values. A1 upon A2 means 2 upon 2 is equal to B1 upon B2 means 2k upon 5, right? 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, 1 आया. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को इधर पहुंचा देते हैं. 1 इज ऑलरेडी देयर, सो 1 इंटू 5, 2 यहां शिफ्ट हो गया. दैट मीन्स योर वैल्यू ऑफ k इज नाउ 5 अपॉन 2. दिस इज योर आंसर, राइट? सो ये इस टाइप के आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में, दैट यू विल बी गिवन दैट दीज आर द 2 पेयर ऑफ लाइन्स एंड दे विल गिव यू ईदर दे आर पैरेलल or they are intersecting or they are coinciding lines. Find the value of k. So you just have to apply 3 conditions which have already been cleared to you. आपको ये coefficients का रेशियो चेक करना पड़ेगा. अगर पहले दो इक्वल नहीं आते, ये दोनों ही अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, राइट? अगर पहले दो इक्वल आ जाते हैं, तीसरा इक्वल नहीं आता, मींस लाइंस आपके पैरेलल हैं, उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. एंड इफ योर दीज 3 ऑल द 3 आर इक्वल, दैट मीन्स दोनों लाइंस बिल्कुल सेम है, तभी तो उनके रेशियोज इक्वल आ गए. सेम लाइंस है मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस है. कोइंसाइडिंग लाइंस मीन्स एक के ऊपर एक आ रही है, राइट? और अगर एक के ऊपर एक आ रही है दैट मीन्स हर पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज द सोल्यूशन, राइट? सो आपके पास 3 कंडीशंस हो जाती हैं. 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में आता है. थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, कंडीशन इज डिफरेंट. यू आर गिवन द इक्वेशन 3x minus y plus 4 is equal to 0. kx minus 2y is equal to -8 है. इक्वल टू -8 तो इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं. इट विल बी +8 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज A1? A1 इज 3. B1 इज y के साथ क्या है? -1. C1 इज 4. A2 इज x के साथ k. B2 इज y के साथ -2 and C2 is 8. Now they are saying the lines are coinciding. Coinciding lines हैं तो कंडीशन क्या होगी? As they are coinciding lines, so coincide मतलब हर पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2.
2, right? A1 we are putting the value 3 upon k is equal to minus 1 upon minus 2 is equal to 4 by 8. 3 upon k minus 1 upon minus 2 4 upon 8. कैंसिल, ये आपका ऑलरेडी 1/2 दोनों सेम हो गए. दैट मीन्स नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k वी विल टेक दीज टू टू बी इक्वल. मीन्स 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट k इंटू 1k, 3 इंटू 2 6. So your answer will be k is equal to 6, right? So you just have to apply the condition according to the lines given to you, whether they are coinciding lines or intersecting lines or parallel lines, right? So these three conditions you have to keep in your mind. Now we are coming to question number 4. Your fourth question is 2x minus 3y minus 6 is equal to 0. This line and x-axis, they are intersecting at which point? You have to tell the point. Point means आपको बतानी है दो वैल्यूज, एक x की और एक y की. एक एब्सिसा बताना है और एक ऑर्डिनेट बताना है, राइट? दिस लाइन एंड x-axis where they will meet, राइट? तो आपके पास दो मेथड्स हैं. या तो आप ग्राफिकल बना दीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस क्लास ऑल्सो एंड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, कि आप एक टेबल बना लीजिए x, y, x की वैल्यूज एज्यूम कीजिए, एक बार 0 ले लीजिए, एक बार 1 ले लो. अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन से y की क्या वैल्यू आती है वो लेंगे. देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ. और जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज आपका ग्राफ ये आ गया, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये और x एक्सिस जहां मीट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए. दैट मीन्स वी हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि ये आपकी लाइन और ये x एक्सिस, राइट? सो वी हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. या तो आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट बता दीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. बट अगर क्वेश्चन ही 1 मार्क का है तो इतना बड़ा क्वेश्चन करना इट इज नॉट गुड, राइट? सो वी हैव टू वर्क स्मार्टली. स्मार्टली वर्क हाउ विल वी डू? x एक्सिस है, ये पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आएगा वो x एक्सिस पर होगा. x एक्सिस का पॉइंट है, मतलब x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? उसके अंदर ये वैल्यू तो आती है, बट ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि y एक्सिस पर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं किया, आप तो एक्सिस पर ही हो. x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर हो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा. सपोज 4 पर हो तो 4 आ जाएगा, अगर ये पॉइंट 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा. दैट मीन्स यू ऑलवेज हैव y इज इक्वल टू 0. x एक्सिस पर हमेशा y 0 होगा, y एक्सिस पर हमेशा x 0 होगा. सो इन दिस केस योर y विल बी 0. तो y को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू 0. यू विल गेट 2x minus 3 into 0 minus 6 is equal to 0. This will become 0, right? What you will get? 2x minus 6, minus को इधर, minus 6 को इधर ले आए तो 6. That means now you have x is equal to 3. तो आपका आंसर क्या आया? आपने पॉइंट बताना था. पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू बतानी थी, राइट? x की वैल्यू क्या आई है? 3. So we are putting the value 3. And what is y? Whatsoever we put, that will be the value of y, right? So your y will be 0. That means your lines 2x minus 3y minus 6 and x-axis will intersect at 3, 0, right? x-axis जहां भी कट करेगा आपको y 0 लेना है, और अगर y-axis कहीं भी कट कर रहा है तो आपने x को 0 लेना है, right? So you have to be wise while doing the questions, right? Solve by substitution method. When they give you the method that you have to solve it by this method, then it becomes your आपके ऊपर ये वो हो जाता है, इम्पोज हो जाती है कंडीशन. दैट इज द कंडीशन ऑन यू दैट यू हैव टू डू इट बाय दैट मेथड ओनली, अदर मेथड इज नॉट एक्सेप्टेबल, right? So we have to do this question by substitution method. Why I have taken this question and specifically given to you the method, so that I can explain the method to you once again if you have not done it in previous videos. You are given two equations, right? We have to solve it by substitution method. Substitution method, before we apply it, let me check whether it has the solutions or not. Solutions का कैसे पता चलता है कि उसका होगा या नहीं होगा? आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a1 upon a2 की. a1 upon a2 will be 4 upon
5, right? B1 upon B2 will be minus 5 upon 4. A1 upon A2 आया है आपका 4 by 5 and B1 upon B2 is minus 5 by 4. Are they both equal? No, they are not equal. If they are not equal, then we will proceed. अगर ये equal नहीं आते, सिर्फ तभी हम इसका solution निकालेंगे. Otherwise, we will write whether it has which type of solution. अगर many solutions है या आपका no solution है, उसके लिए आपको C1 upon C2 भी check करना पड़ेगा, right? So we are going to solve this question. Question को solve करने के लिए we will have to find out the value of one of the variable from first equation. यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ. I'll get 4x. इसको इधर ले आते हैं. 7 plus 5y. So x will be equal to 7 plus 5y upon 4, right? And we have to put this value in this equation. So you will get 5 multiply. Substitute the value. Substitution method है, so we have to take out the variable, one variable from first equation and substitute its value in the second equation. So 5 into 7 plus 5y upon 4 plus 4y is equal to 5, right? Let me solve it now. 5 से multiply करते हैं दोनों को. 5 7 are 35 plus 25y plus upon 4y is equal to 5. Let me take the LCM. LCM 4, you will get 35 plus 25y plus 4 4s are 16y is equal to 5. Now cross multiply. 35 plus 25y plus 16y is equal to 5 4s are 20. 25 plus 16 is 41y is equal to 20 minus 35. So you will get y is equal to 20 minus 35 is minus 15. 41 will come here. So minus 15 upon 41 is the value of y. Now how to get the value of x? जहां से आप इस y को लेकर चले थे, x की वैल्यू आपकी यहां से निकलेगी. जो आपने x की वैल्यू को एज्यूम किया था, यहां से फाइंड आउट की थी, जिसको सब्स्टिट्यूट किया था. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस, राइट? सो फ्रॉम दिस वी विल पुट द वैल्यू हेयर, राइट? चलिए, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 15 अपॉन 41 अपॉन 4, राइट? सिर्फ y की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, राइट? ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 5 नहीं करना है, राइट? वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. 7 प्लस 5 की वैल्यू यहाँ पे मत पुट कर देना, बिकॉज 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद दिस टर्म. सो पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में एडिशन होगी. नाउ प्लस माइनस माइनस 15 5 जा 75 अपॉन 41 अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 41 और ये आपका आ जाएगा 287 माइनस 75 और नीचे वाला 4 आपका एज इट इज, राइट? अब ये नीचे आपके सेम हो जाएंगे, बिकॉज ये आपका 4 नहीं है, ये 4 अपॉन 1 है. इसको अगर लेकर जाएंगे इधर तो 1/4 आ जाएगा, राइट? ओके, नाउ 287 माइनस 75 विल बी 212 अपॉन 41 मल्टीप्लाई 4. कैंसिल कर दीजिए. So you will get 53 upon 41. That means your answer is x is equal to 53 upon 41 and y is equal to minus 15 upon 41. Right? So what we have done in the question, we just have taken the value of variable. एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से फाइंड आउट की है और उसको हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया है. जैसे ही आप उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी आएगी y की वैल्यू, और जो y की वैल्यू आपका फर्स्ट आंसर आ गया उसको आप वापस इसी में पुट करेंगे जहां से आप चले थे. इसमें x की वैल्यू पुट की है और उसे सिंप्लीफाई किया है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get the value of x to be 53 upon 41. So your answer is x is 53 upon 41 and y is minus 15 upon 41. Now question number 6. Question number 6 is solved by elimination method.
Elimination method is the most easiest method. Is equal to 0 and your equation is 2x minus 7y is equal to minus 10 है. चलो लिख लिया, राइट. इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. 3x plus 2y is equal to 10 and your second equation is 2x minus 7y is equal to minus 10. एलिमिनेशन मेथड में हम बनाते हैं कोफिशिएंट्स को इक्वल. या तो ये कोफिशिएंट्स इक्वल बना लो या ये इक्वल कर लीजिए, राइट. उसके लिए चलिए लेट वी डू द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू बी इक्वल. इसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई. ये 3 है तो सेकेंड इक्वेशन को, इधर 2 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. सो दैट दे बिकम इक्वल. अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 10 जा 20. 3 से कीजिए 3 2 जा 6x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस 30. उसके बाद क्या करें, कोफिशिएंट सेम हो गए. एलिमिनेट करना है. टू एलिमिनेट दे मस्ट हैव ऑपोजिट साइन. अगर अपने आप पहले से ही ऑपोजिट साइंस होते तो हम कुछ भी ना करते, बट साइन ऑपोजिट करने हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए. तो वी विल चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स, मीन्स वी आर सबट्रैक्टिंग, राइट. तो हम इसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. नाउ दीज टू विल बी कैंसल्ड. 41 प्लस 4 प्लस 21 विल बी 25y is equal to 30 plus 20 50. So you will get y is equal to 50 upon 25 means 2, right. अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है. now put this value of y in any of the given equation. y की वैल्यू क्या आई है, 2. so we are put y is equal to 2 in equation number 1. you will get 3x plus 2 multiply 2 is minus 10 is equal to 0. You will get 3x, 2 2s are 4, minus 10 is equal to 0. That means 3x, 4 minus 10 is minus 6 is equal to 0. So 3x is equal to 6 means x is equal to 6 upon 3, that is 2. So your answer is x is equal to 2 and y is equal to 2, right. Elimination method आपने अप्लाई करना था, सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना था. सेम बनाने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से कर दिया पूरी इक्वेशन को, राइट. और करके दोनों को हमने क्या किया है, क्योंकि दोनों के साइन सेम नहीं थे, ऑपोजिट नहीं थे, तो हमने इनको साइंस को ऑपोजिट किया बाय सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन. सबट्रैक्ट किया मतलब हमने सारे साइंस को चेंज किया. जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे योर दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड and you will get the value of y to be equal to 2. और y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, you will get the same value of x. और यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू भी आ रही है that is 2, right. जैसे आपने x के कोफिशिएंट्स को सेम किया है, if you want you can do the coefficients of y to be equal. उसके लिए क्या करते हैं, आप इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर आपका y एलिमिनेट हो जाता और आपके पास x की वैल्यू आ जाती, राइट. इन बोथ द वेज यू विल गेट द आंसर टू बी सेम, एग्जैक्टली द सेम, राइट. 7th क्वेश्चन नाउ. योर 7th क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 numbers is 35. लेट द numbers आर x and y. Simplest question. x according to question. Sum of the numbers is 35 means x plus y is 35. डिफरेंस इज 13, x माइनस वाई इज 13, राइट. तो इसको तो बहुत ही इजी है ये तो सॉल्व करना. आपके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट दोनों ही सेम है, राइट. इसमें कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, साइन नहीं चेक करते हैं हम कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए. आप सीधा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मैं कहती हूँ ऐड कर देंगे. अगर आप साइन चेंज करके करते हैं तो ये टर्म कैंसिल होगी, बट अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं तो आपके इसके ऑपोजिट साइन बिल्कुल सेम टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी, राइट. हमने किया है 1 plus 2, ये कैंसिल हुई. x plus x 2x, 35 plus 13 is 48 means x is equal to 24, right. and we put this value in any of the equation. आप ले लीजिए x plus y is equal to 35. So x is 24
24 plus y is equal to 35 means you have y is equal to 35 minus 24, that is 11. So your answer is 24 and 11, right? Clear? Okay. Coming to the 8th question. Your 8th question is the perimeter of a rectangle. जब perimeter की बात कर रहे हैं, rectangle की बात कर रहे हैं, तो क्या assume करना पड़ेगा? We will have to find out we will have to assume the length and breadth, right? Okay, so we are taking length as x and breadth as y. And they are saying perimeter is 52. Perimeter का formula 2 into L plus B is equal to 52. इस 2 को इधर ले आते हैं, 52 upon 2, 26. और इधर आपका क्या रह गया? Only L plus B. And what is L and B? L we have taken as x and B as y. So your equation is x plus y is equal to 26. And in the second line, the question is saying where length is 6 centimeter more than width. Length width से 6 centimeter ज्यादा है. मतलब length और breadth का जो difference है, length और width या breadth का है, the difference is given to you 6. So this is the second equation. Difference of the two is 6. या फिर आप ये कह लीजिए length width से 6 ज्यादा है, right? We have to find the dimensions of the rectangle, right? First line they are saying form a pair of linear equations for the above situation. So these two will be the equations of the given situation, and we have to find the length and breadth. Also the question is same just like the above one. आप सीधा दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए. जैसे ही आप ऐड करेंगे तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 26 प्लस 6 32 मीन्स x इज इक्वल टू 16. इस 16 को आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. You will get x plus y is equal to 26 means 16 plus y is equal to 26. So y is equal to 26 minus 16, that is 10. So your length is answer आपके आ जाएंगे. Length is x 16 centimeter and 10 centimeter. Why we are writing centimeter? Because the perimeter is given to you in centimeters. Now question number 9. The 9th question is the sum of the digits of a 2-digit number is 8. Sum of the digits. आपको ones place लेना पड़ेगा. Ones place digit is x and tens place digit is y. नंबर क्या हो जाएगा? टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई और दोनों को करते हैं प्लस. तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 10y. आपका जो नंबर बनेगा दैट विल बी 10y 1 into x. So 10y plus x. क्लियर? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. सिर्फ कुछ आपकी टर्म्स बीच में चेंज होती जाएंगे. नंबर रिवर्स कर दें तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो नंबर हो जाएगा 10x plus y. 10y plus x था, नंबर हो गया 10x plus y. एंड देन दे आर सेइंग द सम ऑफ द डिजिट्स. ओके, आते हैं क्वेश्चन पे. सम ऑफ द डिजिट्स इज 8 एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18. Digits sum means x plus y is 8. Digits का sum 8 है. So your first equation is x plus y is equal to 8. Second, they are saying the difference between the number and that formed by reversing the digits. मतलब पहले आपने पहला नंबर जो है वो लिखना है और मेरा पहला नंबर था 10y plus x. Difference means you have to subtract. What you have to subtract? The reversing number. रिवर्सिंग नंबर है 10x plus y और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन टू यू 18. राइट? इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं. 10y plus x, because of this minus sign the inner terms will get changed in their sign. Now 10y minus y is 9y. x minus 10x is minus 9x is equal to 18.
तीनों 9 से डिविजिबल है, आप पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दीजिए। इसके नीचे 9 लिखेंगे तो 9 9 कैंसिल, y लेफ्ट, माइनस इसके नीचे 9 आ गया तो 9 से 9 कैंसिल, x 18/9 करेंगे तो 9 से 18 कैंसिल 2, राइट। सो योर इक्वेशन इज y माइनस x इज इक्वल टू 2, right? One of the equation is x plus y is equal to 8 and second equation is y minus x is equal to 2, right? Okay. Now we have to solve these two equations. ये आपकी second equation है. इसको थोड़ा सा standard form में कर लेते हैं before taking it as equation number 2. पूरी can I write it as x minus y is equal to minus 2? Can it be written? How we have written it? I have इसको मैंने क्या किया है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, हुआ कुछ क्लियर? व्हाट वी हैव डन, या फिर हम कह सकते हैं इसमें से मैंने माइनस निकाला बाहर, बिकॉज आई वांट एक्स पॉजिटिव, तो मैंने नेगेटिव इसको बाहर निकाल दिया, नेगेटिव को। जैसे ही नेगेटिव बाहर निकला एक्स पॉजिटिव हो गया, इसके अंदर से भी बाहर नेगेटिव आ गया, इसके पास प्लस था, प्लस मतलब माइनस माइनस, दो माइनस थे, दो माइनस में से एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अंदर रह गया, राइट। ओके, इज इक्वल टू 2। इस माइनस को हमने कर दिया इधर शिफ्ट, सो आवर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, राइट। नाउ वी आर टेकिंग इट एज इक्वेशन नंबर 2। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या करें, दोनों को प्लस कर देते हैं बिकॉज y का कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। प्लस करते हैं तो ये हो गए कैंसिल, y एंड y। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 मीन्स x इज इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रही हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 मीन्स 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और वी कैन से y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, राइट। सो व्हाट विल बी योर नंबर, आपका जो नंबर आपने स्टार्ट किया था जहां से क्वेश्चन, आपका नंबर था 10y प्लस x, तो इसमें y और x की वैल्यू पुट करते हैं, नंबर इज 10y प्लस x, और नंबर विल बिकम 10y प्लस x which is equal to 10, y is 5 plus x is 3. 10 into 5 50, 50 plus 3 is 53. So this is the number. Right? Next question. Your 10th question is, students of a class are made to stand in a row. If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 more rows. Find the number of students. So what we are going to assume here, we are going to assume, let the number of rows is x and number of students in each row will be y, right? If we have taken x students and there are y student, if we have taken x rows and y students are there in each row, that means how many total number of students are there? If suppose we are going to make 5 rows of your class, and in each row there are 5 students, then how many students will be there? Total students will be 5 into 5, 25. Similarly is here, if we have x rows and y students are there in each row, then total number of students will be x into y. And let me see what the question say. The question says, if 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. अगर हर रो में 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएं तो 2 रोज कम बनेंगी। हर रो में 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएं, ऑलरेडी देयर आर y स्टूडेंट्स, तो अगर y की जगह y प्लस 4 हो जाए, अगर हम हर रो में स्टूडेंट्स बढ़ा दें तो ऑफ कोर्स हमारी रोज कम बनेंगी, राइट। आपके स्कूल में भी क्या होता है, जब आप स्टूडेंट्स खड़े होते हैं असेंबली में, हमें एक रो खत्म करनी है तो हम क्या करते हैं, उस रो के स्टूडेंट्स को बाकियों में मर्ज कर देते हैं, हर रो में एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं, तो आपकी रोज कम हो जाती हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, अगर हर रो के अंदर 4 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए जाएं, मींस y प्लस 4 कर दिए जाएं, देन देयर वुड बी 2 रोज लेस। जो पहले x रोज बन रही थी वो अब हो गई x माइनस 2। इतनी रोज, इतने स्टूडेंट्स इन ईच रो, टोटल स्टूडेंट्स
फिर से क्या हो गया इनका प्रोडक्ट, जस्ट लाइक वी हैव टेकन द प्रोडक्ट हियर x into y. Similarly the total number of students is x minus 2 into y plus 4. और बट आपके स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, चाहे आप x रोज बनाए या x minus 2 रोज बनाए, students will remain same, that is xy. Similarly we are writing if 4 students are less in a row, अगर हर रो में से 4 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाएं, देयर वुड बी 4 मोर रोज. तो जो आपकी रोज पहले x थी अब वो क्या हो गई 4 और बढ़ गई, क्योंकि हमने हर रो में से स्टूडेंट्स निकाल दिए. अब वो निकाले हुए स्टूडेंट्स कहीं तो खड़े करेंगे ना, उसके लिए हमारे क्या होंगी एक्स्ट्रा रोज बनेंगी. नाउ दे आर सेइंग अगर हम हर रो में से 4 निकाल देते हैं तो हमारी जो रोज हैं दे आर इंक्रीज्ड बाय 4, राइट. बट अगेन द प्रोडक्ट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई. सॉल्व करते हैं x minus 2 into y plus 4. It will be x into y xy, 4 into x 4x, minus 2 into y will be minus 2y, and minus 2 into 4 is minus 8. This is equal to xy. xy से xy आपका cancel because both are on the opposite sides of the equal sign with same sign. Equal के एक इधर है but दोनों ही positive हैं, so ये दोनों क्या हो गए कैंसल. एंड योर इक्वेशन इज 4x minus 2y, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इट इज 8. सारी आपकी 2 से कैंसिल हो रही हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2x minus y is equal to 4. दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1. मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, इसको भी 2 से डिवाइड किया है और 8 को भी 2 से डिवाइड किया है. 2 4s are 8. नाउ लेट वी सिंप्लीफाई द सेकेंड वन, x into y xy, x into minus 4 minus 4x, 4 into y 4y, and 4 into minus 4 will be minus 16 is equal to xy. xy से आपका xy cancel and you are left with minus 4x plus 4y minus 16 is equal to 0. इसको हम क्या कर रहे हैं, now we are dividing it with 4. इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं, आपके पास आ गया minus x plus 4 divided by 4. 16 divided by 4 will be 4 is equal to 0, right? So your equation is minus x plus y is equal to 4. This is equation number 2. Now let me simplify the first and the second equation. I am writing second equation again here. Minus y is equal to 4 and minus x plus y is equal to 4. यहाँ पर आपका जो y है that is exactly the same with opposite sign. तो हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं so that they get cancelled, right? तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ये कैंसिल हुए. 2x minus x is x and 4 plus 4 is 8, right? Now we are putting this value of x in any of the two equations. या इसमें पुट कर दीजिए या इसमें ले लीजिए. I am taking in the second equation. Minus x I am putting in second equation. x की जगह पे -8, x की जगह पे आपने पुट किया 8 बट माइनस साइन वॉज ऑलरेडी देयर, प्लस y इज इक्वल टू 4. और आपका जब ये 8 इधर आएगा इट विल बिकम 4 plus 8 दैट इज इक्वल टू 12. और आपके पास अब क्या आ गया, x वॉज द नंबर ऑफ रोज 8 and y students in each row that is 12. Means your students total students will be, कितने थे आपके total students, it was x y, means your total students will be x into y, means 8 into 12 that is 96. So there are total 96 students in the class. The 11th question is the sum of the two digits number and the number obtained by reversing the digits. फिर से 2 digit number वाला क्वेश्चन आ गया है. सम ऑफ द 2 digit numbers, तो आप पहले वंस डिजिट ले लीजिए और टेंस प्लेस डिजिट ले लीजिए. आई एम टेकिंग वंस डिजिट एज x and tens digit as y, right? So my number will become 10 into y plus 1 into x, and what will be the reversing number? Reversing number will be 10x plus y, right? And they are saying the sum of this digit
and the sum of this number and the number obtained by reversing the digits is 154. इन दोनों numbers का sum है 154, means 10y plus x plus 10x plus y is equal to 154. Combine the like terms, 10y plus y 11y, 10x plus x is 11x is equal to 154. 11 को common ले लीजिए, x plus y is equal to 154, means x plus y is equal to 154 upon 11. You will get the equation to be x plus y is equal to 14, equation number 1. And the second line of the question, if the two digits differ by 4, दोनों डिजिट्स के जो बीच का डिफरेंस है, हमने एक डिजिट ली है x, दूसरी ली है y, दोनों डिजिट्स के जो बीच का डिफरेंस है वो है 4. अब ये जो डिफरेंस है ये आपकी मर्जी है, चाहे आप x माइनस वाई लें या y माइनस एक्स लें, इट्स योर चॉइस. टू आंसर्स आर एक्सेप्टेबल फॉर दिस क्वेश्चन. आई एम टेकिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. द टू इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व, दोनों को प्लस कर लीजिए, ये कैंसिल. 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 9, and you will put this value in any of the two. I am putting it here in this equation. I'll get 9 minus y is equal to 4. So 9, 4 को इधर ले आइए, y को इधर ले जाइए, you will get y. So 9 minus 4 is 5. अपना आंसर लिख लेते हैं. हमारा आंसर, हमें नंबर चाहिए और मेरा नंबर क्या था? My number was 10y plus x. So I'll write 10 into y plus x is 9. So my number will be 59. If you will take here x minus y, instead of this if you take y minus x, then you will get the answer to be 95. Right? Both the answers are correct. Both are acceptable. Now question number 12. Part of a monthly expenses of a family is constant. एक फैमिली है जिसके दो टाइप के आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं. एक तो मंथली एक्सपेंसेस जो फिक्स हैं वो अलग हैं, और जो बाकी है वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ व्हीट पर, कि उस कंपनी की, उस फैमिली की कितनी कंजम्पशन है व्हीट की. राइट? तो हम फिक्स्ड जो है उसका फिक्स्ड एक्सपेंस वी आर टेकिंग एज एक्स, एंड और आपका जो उस पर डिपेंड कर रहा है व्हीट पर, दैट वी विल हैव टू टेक. अब यहां पर क्या लें? एक्सपेंस ऑन व्हीट, वो तो फिक्स ही नहीं है, वो तो वेरी कर रहा है. तो यहां पर हम जो एज्यूम कर रहे हैं, लेट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कंज्यूम्ड इज y. राइट? ओके. नाउ वी आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो व्हीट है वो ₹250 पर क्विंटल है, यहां पर आपको क्विंटल लेना पड़ेगा. राइट? अगर आपके ₹250 पर क्विंटल है तो आपके जो टोटल चार्ज लगता है वो ₹1000 लगता है. ₹250 पर क्विंटल, और कितने क्विंटल आप ले रहे हैं? Y. सो आपके जो व्हीट के चार्जेस हो जाएंगे 250 Y हो जाएंगे, और X आपके लगने ही लगने हैं, दैट इज द फिक्स चार्ज. तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 250 y इज इक्वल टू 1000. राइट? और अगर आपकी जो व्हीट है वो आप ₹240 पर क्विंटल ले रहे हो और आपने y क्विंटल लेना है, ठीक है, तो आपके व्हीट की कॉस्ट कितनी हो गई? 240 y क्विंटल लेना है. एक क्विंटल 240 का है तो y क्विंटल कितने का हो गया? 240 y. इसके साथ साथ आपके x का खर्चा तो आना ही आना है. दिस इज इक्वल टू, नाउ दे आर सेइंग अगर आप इतना करते हैं तो आपका जो टोटल खर्चा है वो 980 आता है. दैट मीन्स आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. मैं दोबारा से इधर लिख रही हूं. x प्लस 250 y इज इक्वल टू 1000 एंड x प्लस 240 y इज इक्वल टू 980. नाउ आई हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस. सेम है कोएफिशिएंट्स और इनके साइंस भी सेम है, सो आई नीड द डिफरेंट साइंस सो दैट आई कैन कैंसिल देम. राइट? x से x कैंसिल. 250 माइनस 240 इज 10y. 1000 माइनस 980 इज 20, मीन्स y इज इक्वल टू 2. y आपका क्या था? आपने क्वांटिटी ऑफ व्हीट ली है कि उस फैमिली की कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट कंज्यूम होता है. राइट? सो उस फैमिली में 2 क्विंटल ऑफ व्हीट जो है वो यूटिलाइज हो रहा है.
नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस. एक्स प्लस 250 इंटू 2 is equal to 1000 means x plus 500 is equal to 1000. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500. दैट मीन्स फैमिली का इतना खर्चा तो होता ही होता है. 2 क्विंटल वो उनके घर में लगता है वीट. एंड आपने जो फाइंड आउट करना है मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली व्हेन द कॉस्ट ऑफ वीट इज 350 अ क्विंटल. तो उस फैमिली के 500 रुपीज तो लगने ही लगने हैं, राइट, फिक्स्ड है. और अगर आपकी जो कॉस्ट है वो 350 हो जाती है, 1 क्विंटल 350 का, आपके कितने क्विंटल लग रहे हैं? 2. तो वीट की कॉस्ट हो गई 350 इंटू 2 प्लस 500 आर फिक्स्ड. दैट मीन्स 500 प्लस 700, राइट. तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 1200 रुपीज इज द expense or monthly expense of the family when the cost of wheat is 300 rupees per quintal. Come to the question number 13. Your 13th question is, a test consists of true false questions. 1 mark is awarded for every correct answer and 1/4 marks is deducted for every wrong answer. जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको एज्यूम करने होते हैं कि कितने आपके करेक्ट हैं और कितने आपके रॉन्ग हैं. Let correct answers are X, wrong answers are Y. राइट. आपको हर करेक्ट के लिए 1 मार्क मिल रहा है, आपको हर रॉन्ग के लिए 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट हो रहा है. A student knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by cheating. He answered 120 questions. टोटल उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया? 120 क्वेश्चंस का आंसर दिया. तो आपकी एक इक्वेशन यहां से बन जाती है. टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? 120. दैट मीन्स द इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. एंड टोटल उसको इन 120 क्वेश्चन से मार्क्स मिले हैं 90. मार्क्स कितने हैं? 90. और ये कह रहे हैं कि अगर उसको हर करेक्ट के 1 मार्क मिला होता, इसके लिए उसको मिलते 1 मार्क, इसके लिए उसके डिडक्ट हो जाते 1/4. ठीक है. x मिले, 1/4 y उसके डिडक्ट हो गए. तो x मार्क्स, x इंटू 1, x करेक्ट आंसर से उसके कितने मार्क्स हो गए? x इंटू 1 मीन्स x. और रॉन्ग आंसर से उसके कितने मार्क्स कट गए? y मल्टीप्लाई 1/4 मीन्स y/4. तो जो उसके मार्क्स x आते हैं वो x माइनस y/4 हो गए. ये मार्क्स उसके कैंसिल हो गए, कट गए, राइट. और टोटल मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं 90. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम 4, राइट. सो योर इक्वेशन विल बी 4x माइनस y इज इक्वल टू 360, right? So I am writing the equation in standard form. This is 360. One of the equation is this. Second equation is this. क्या करें दोनों equations को? दोनों equations में y सेम है, साइंस भी ऑपोजिट है, तो दोनों equations को जस्ट आप ऐड कर दीजिए. आई एम राइटिंग द इक्वेशन है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया. 4x प्लस एक्स इज 5x. ऐड कर दीजिए 480 and you will get 480 upon 5, 36, right? That means x की वैल्यू 36 means उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? उसके करेक्ट आंसर्स हैं 36 और टोटल 96 we are getting the value of x. तो आपके करेक्ट आंसर्स हो गए 96 और टोटल आंसर्स जो हैं वो हैं 120. तो 120 में से आप 96 माइनस करेंगे, you will get the wrong answers. That means the value of y. And what we have to find out, then how many questions did he answer correctly? So आपको y की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. That 96 questions are done correct, right? 14th question. Your 14th question is, the income of x and y are in the ratio 8:7 and their expenditures are in the ratio 19 and 16. Income of x, income of y. आपके पास जो रेशियो गिवन है दैट इज 8:7 और जब भी इस तरह का रेशियो होता है तो हम इसको 8x ले लें और इसको 7x ले लें. अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की. एक्सपेंडिचर ऑफ x
and expenditure of Y. The ratio is given to you 19 and 16. ठीक है, आपके पास 8 और 7 था, आपने रेशियो ले लिया 8x 7x. यहाँ पर 19 16 का रेशियो है, बट यू कैन नॉट टेक 19x एंड 16x बिकॉज द टर्म x यू हैव ऑलरेडी टेकन. जरूरी नहीं है जो नंबर इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा हो वही इसमें हो रहा हो. सो यू विल हैव टू टेक डिफरेंट नंबर हेयर. I am taking 19y and 16y, right? So now they are saying in both the cases the saving is 1250. अब सेविंग कैसे होगी? इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है. इतनी कमाई हुई, इतना खर्चा कर दिया, तो सेविंग कहाँ गई? सेविंग आएगी इन दोनों को माइनस करके. सो वी आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x minus 19y is equal to कितना? 1250. सेकेंड इक्वेशन इज 7x minus 16y is also equal to 1250. Both the equations you have. इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको नहीं देखना है कि ये सेम हो गया तो हम माइनस या प्लस करते हैं. वी हैव टू सी द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y. तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, राइट? सो यू विल गेट योर इक्वेशन to be 56x minus 133y is equal to 8750, and second equation will be 56x minus 128y is equal to 10000, right? दोनों कोफिशिएंट्स आपके सेम हो गए. चेंज कर दीजिए साइन, कैंसल. Now minus 133 plus 128 will be minus 5y is equal to minus 1250. So y is equal to minus, say minus cancel, 1250 upon 5 you will get 250, right? If this is 250, to get the value of x, let me put it in any of the equation. I am putting in the first one 8x minus 19 into y की जगह 250 is equal to 1250. 8x minus 19 into 250 will be 4750 is equal to 1250. Now you will get 8x is equal to 1250 plus 4750, which is equal to 6000. So x is equal to 6000 upon 8 means 750. तो आपके पास x की वैल्यू आई ये, y की वैल्यू आई ये, राइट? एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, फाइंड देयर इनकम. इनकम आपने फाइंड आउट करनी है. सो इफ यू मल्टीप्लाई x with 8 you will get the income of capital X, and if you multiply this 170 with 7 you will get the income of y, right? Come on the last question, question number 15. 15th question is the age of the father is equal to the sum of the ages of his 5 children. I informed you that you have to take 5 children here. Okay. Let father's age is equal to x. Age of father is equal to the sum of the ages of the children. 5 children, right? Sum of ages of 5 children. This will also be x. According to question they are saying father की एज अगर x है तो 5 बच्चों की एज का सम भी सेम है, that means x है. Now, according to question, अगर आज फादर की एज x है, then what will be the age after 15 years? It will be x plus 15. If the age of 5 children today is x, what will be the age of 5 children after 15 years? It will not be x plus 15. It will not be. What will it be? It will be x plus 75. क्यों? क्योंकि 5 बच्चे हैं. 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इन 5 बच्चों की एज में 15 प्लस हुआ है, राइट? 15. यहां वाली जो एज थी वो तो x थी और ये प्लस कितने हो गए? 75. 15 5
75. So the age of children after 15 years will be x plus 75. And according to question, after 15 years, sum of the ages of his 5 children will be twice the age of the father. Father की age का twice will be equal to the age of the children after 15 years. So let me simplify the equation now. 2x plus 30 is equal to x plus 75. 2x minus x is equal to 75 minus 30 means x is equal to 45 years. Clear? इसमें इस चीज का आपने ध्यान रखना है. Once this question came in board exam, then also students did mistake. Father's age we are taking as x. They are saying 5 बच्चों की एज का सम फादर की एज के इक्वल है. तो हमारे अगर फादर की एज x है तो 5 बच्चों की एज का सम कितना हो गया x. और 15 साल के बाद फादर की एज हो जाएगी x plus 15. But the ages of 5 children after 15 years will be x plus 75. क्योंकि x तो उनकी एज का सम पहले था और हर बच्चे की एज 15-15 साल और बढ़ गई. तो 15-15 साल हर एक बच्चे की बढ़ रही है. Then 15 years of 5 children will be 15 5s are 75. Now they are saying 15 साल बाद जो बच्चों की एज है that is equal to twice the age of father. So 2x plus 30 is equal to x plus 75. Simplify किया तो आपके पास x आया है 45. So this was your assignment. You have to practice. You will get more assignments. Just keep on doing practice. Whatsoever the problem still you have, you may discuss it on WhatsApp or you may call on my number. Thank you and have a nice day. Don't forget to share and